Hello everyone. Today we are going to discuss about the 14th October quiz questions. We have already discussed very very minimum questions, so there is nothing to actively recall today. We will try to recall the things later. I would made a separate section for the other section of the economy, and on the inside of India website they are putting economy questions. So on the 14th, even on the 16th and 17th October, they are related to the economy. So let's move to the questions directly. Question number one: consider the following statement regarding reserve money. Reserve money consists of vault cash in banks and deposits of commercial bank with RBI. Number two, bank use this reserve to meet the demand for cash by account holders. So the above statement is or are incorrect. So I'm not sure about it. Let's move to the next. If the cash reserve ratio CRR is increased, it may lead to the following. लेजर सपोज करें ये पूछ रहे हैं कि अगर CRR इंक्रीज हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होंगे। तो जैसे हम एक पर्टिकुलर CR पे देखते हैं कि लैंडिंग जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होनी चाहिए बैंक की, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा CR अपना रखना पड़ेगा साइड करके तो क्या करना पड़ेगा, लैंडिंग के लिए जो मनी होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। Right. So lesser availability of loanable fund with the bank. That is true. Immediate foreign institutional investment flow in the economy. There is not nothing like it. इसका कोई concept नहीं है. Reduction in the fiscal deficit of the government. ऐसा भी कुछ नहीं है. So only one statement is correct. Consider the following statement regarding GDP deflator. GDP deflator हमने काफी बार देखा है. We take nominal GDP and divided by real GDP cross 100. So a statement when the GDP deflator is basically a measure of inflation. In a certain way, we can say that it represents the inflation, and it helps. Number two, it helps show the extent to which the increase in GDP has happened on account of higher price rather than increase in output. हाँ ये तो true है of course. Number three, it covers only those goods and services directly consumed by the household. So ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है. बेसिकली ये मेजर करता है इन्फ्लेशन को, नॉट एग्जैक्टली इसके लिए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ये मेजर नहीं है इन्फ्लेशन का, बस तो मैं टू ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेजर निकालना होता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, द करंट माइनस ओके द नॉमिनल माइनस द करंट डिवाइडेड बाय द, आई थिंक इट्स अ रियल माइनस नो, इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला रहता है इसका, इंटू में 100, उससे आ जाती है इन्फ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statement regarding currency deposit ratio. ओके डिपॉजिट है, रेशियो है एंड करेंसी. CDR is calculated only with respect to term deposit. Term deposit क्या होता है? Term deposit like suppose grow and bank take loan. Okay, call money इसको टर्म मनी बोलते हैं, एक को बोलते हैं नोटिस मनी. तो हम सारे टर्म डिपॉजिट को ये कह सकते हैं कि वो डिपॉजिट जिनका जो टाइम पीरियड होगा वो 91 डेज तक रहेगा. Number two, it reflects people preference for liquidity. People preference for liquidity. And number three, generally increase during the festive season. Currency deposit ratio. करेंसी को डिपॉजिट करेंगे पीपल फेस्टिवल के टाइम पे, नॉट यूजुअली, सो वी कैन से ये तो गलत हो गई. इट रिफ्लेक्ट पीपल प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी. हाँ ये हो सकता है कि ये शायद हमने पहले भी किया है इस तरह क्वेश्चन. इट रिफ्लेक्ट पीपल प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी, दैट कैन बी ट्रू. CDR is calculated only with respect to term deposit. ओके आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो हम ओनली वन मान के चलें respect to term deposit. Only one. Consider the following statement regarding special drawing right. Special drawing right is an international reserve asset
created by IMF to supplement its member countries' official reserve. The value of SDR is based on the basket of currencies of developed countries. Which of the following statements are correct? Special drawing right. The value of the SDR is based on the basket of currency of developed countries. Incorrect. The SDR is the International Asset Reserve. Asset created by IMF to supplement its member countries' official reserve. And supplement, I just don't know actually about it. क्योंकि देखो SDR जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि SDR जो IMF का SDR है इसमें जैसे सबको अपने रिजर्व अलॉटमेंट होते हैं जिनकी जैसे जितनी आपने इसमें कंट्रीब्यूशन की है उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट हो जाते हैं ड्राइंग राइट. ओके. वैसे जो करेंसीज की जो बास्केट होती है उसके हिसाब से बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ द करेंसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. जहाँ तक ऐसे डेवलप नहीं है, चाइना भी तो है उसमें, चाइना की भी तो रेन भी है, रेन भी कुछ है उसमें. कौन सी है या चाइना में कौन सा चलता है? युआन चलता है चाइना में. तो एक कंट्री चाइना की भी है तो ये तो हम मान के चलेंगे कि गलत हो गया. इंटरनेशनल रिजर्व एसेट ये मुझे एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. लेट्स मूव टू द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि इसमें करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है. नाइदर 1 नाइदर 2. इसमें क्या पूछा था कि जो रिजर्व मनी है कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कैश इन बैंक डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई. क्या जो उन्होंने पूछा था कि बैंक यूज द reserve to meet the demand for cash by account holder. बात करते हैं रिजर्व मनी की. बेसिकली रिजर्व मनी का जो हमें पता है बेसिकली क्या होता है. सपोज कि ये आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई है. ये देखो एक तो हम ये देखते हैं कि आरबीआई पैसे मनी क्या करता है, मनी प्रिंट आउट करता है ना कि भाई कितनी मनी इशू कर सकता है. इसके 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का सिक्का है या कॉइन है, ये कौन इशू करता है? इशू तो आरबीआई करता है. बट ये गवर्नमेंट की उसके हिसाब से होते हैं. गवर्नमेंट के इसमें गवर्नमेंट देती है जितने रिकमेंडेशन देती है कि इतने पैसे इतने सिक्के इंट्रोड्यूस करने हैं, इतने वो इशू करने हैं. लेकिन ये जो मनी है जो जितनी भी और बाकी जितनी मनी है वो क्या है, वो आरबीआई इशू करता है. आरबीआई इसमें इसको बोलते हैं रिजर्व मनी. इसी को बोलते हैं रिजर्व मनी. जैसे ये किस हिसाब से इशू होती है कि भाई जिसने इसके पास रिजर्व होते हैं आरबीआई के पास, वो गोल्ड की फॉर्म में हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व की फॉर्म में हो सकते हैं. पहले क्या होता था कि अगर 551 के रिजर्व है तो आरबीआई जितने चाहे उतनी मनी इशू कर सकता था. लेकिन अब शायद ये लिमिट 200 कर रखी है. इसमें से 150 के आपके पास गोल्ड होने चाहिए, बाकी आपके पास वही ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो सारी हो तो आरबीआई कितनी जितनी चाहे उतनी मनी इशू कर सकता है. पहली बात. जैसे जो ये मनी इशू करेगा, सपोज को एक्स अमाउंट ऑफ मनी इसने बैंकों में इंजेक्ट कर दिया आरबीआई ने, तो बैंक से वो मनी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी. सपोज करिए जैसे कि अगर 100 रुपए भी हम बात करें और अगर रिजर्व रेशो आपकी भाई इनको अपने पास 40 के रिजर्व रखने तो 40 तो वैसे निकाल देगी भाई 40 के इनको रिजर्व रखने. 60 ये क्या करेंगे, लैंड करेंगे. इसके पास जितने भी लैंड करेंगे चाहे वो कंपनी के पास जाए या लोगों के पास जाए, वापस जमा तो बैंक में ही होगा किसी ना किसी सर्कुलेट होकर. देन तो जो जमा होगा वो उसमें से कुछ रिजर्व बाहर निकाल दिया जाएगा और बाकी को क्या करेंगे, बाकी को फिर से लैंड कर देंगे. तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी भी इंट्रोड्यूस करता है आरबीआई बैंक में तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है. इसीलिए जो ये रिजर्व मनी है ना, इसको इसको M0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये बेस में इसको बेस मनी भी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं. जैसे और मनी मल्टीप्लायर हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी मनी मल्टीप्लाई होगी एट द एंड, 1/CR. ये जो रिजर्व रेशियो है कोर्स में 100. इससे हमें पता चल जाएगा कि मनी कितनी मल्टीप्लाई होगी कि भाई हमने एक्स दिया उस पर 2.5 हो गई वो सर्कुलेशन में मनी इतनी मल्टीप्लाई हो गई. तो ये क्या है, तो ये एक जनरल सिनेरियो हमने जनरली थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस कर लिया. इसके बाद हम जैसे नैरो मनी M1 की बात करते हैं, M2 की बात करते हैं, ये नैरो मनी होती है. M3 की बात करते हैं,
M4 की बात करते हैं, ये ब्रॉड मनी होती है, राइट। ये मोस्ट लिक्विड कौन सी होती है? मोस्ट लिक्विड होती है M2, M1 सॉरी, फिर उसके बाद M2, फिर M3, M4, ठीक है। तो जैसे इसमें ना अलग अलग जैसे चीजें है कि इसमें क्या क्या M3 में जैसे क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो रिजर्व मनी है वो कंसिस्ट फॉर वो कैश इन बैंक, जो कैश है, इसके अलावा जो डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI, ये भी हो सकता है। बैंक यूज द रिजर्व to meet the demand for cash by account holder। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो बैंक होल्ड पार्ट ऑफ द मनी people keep in their bank deposit as a reserve money। bank hold a part of money people keep in the bank deposit as a reserve money and loan out the rest to various investment projects। इन्होंने यहाँ पे कौन से रिजर्व की बात करी है? इन्होंने ना उस रिजर्व मनी की बात करी है। सपोज कीजिए बैंक के पास कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, उसको कुछ रिजर्व भी रखने पड़ते हैं और कुछ वो बाकी जो पैसे है, सपोज वो ए रिजर्व रखता है और जिसमें बाकी जो मनी बच गई बी उसको लोन में प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो रिजर्व रखता है, चाहे वो CRR कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में रखे या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की फॉर्म में रखे, ये पहली बात तो एक तो ये सारी रिजर्व है। इसके अलावा जैसे इन्होंने जो बात की है कि जो कुछ जैसे जो मनी RBI ने अपने पास रखनी है वो क्यों रखी है? क्योंकि ये सपोज जैसे अगर आप सारे आपके पास जितनी भी मनी है उसको लोन प्रोवाइड कर देंगे तो सपोज कि बैंक के पास पैसा कहाँ जाता है? जो पैसे मैंने अपने वहां पे जमा करवाए हुए, तो कुछ RBI ने इंट्रोड्यूस किया वो अलग बात है। एक जो बाकी जितना भी उन्होंने लोन दिया एट द एंड वो सारा तो वैसे बैंक में ही डिपॉजिट होता है, उसी से फिर वो दोबारा लोन देता है, इसी से ये मनी मल्टीप्लाई होती है। लेकिन जैसे जो आम पब्लिक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई उन्होंने कोई फिक्स डिपॉजिट कर दिया कि हम इतने दिनों के बाद लेंगे। बहुत सारी मनी डिमांड डिपॉजिट होती है, यानी कि हम जब चाहे उसको निकलवा सके। जैसे मुझे आज जरूरत है, अब तो जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी होते हैं, तो भैया मुझे पे करने की जरूरत है, आज मैंने अपना पैसे निकलवा लिए, या फिर आपको कल जरूरत है, किसी भी टाइम किसी को भी जरूरत हो सकती है। तो RBI को क्या रखता है, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रखता है कि ताकि डिमांड की जो डिपॉजिट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके, कि ऐसा ना हो कि भाई पब्लिक अपने पैसे लेने आ रही है और आपके पास इतना पैसा है नहीं, आपने सारा, तो बैंक क्या करेगा, देयर विल बी सिनेरियो ऑफ द क्रैशिंग, राइट। सो इसने क्या इंक्लूड किया है कि जो एक तो जो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट रखते हैं और RBI के पास अपने डिपॉजिट रखते हैं उनको, और ये क्यों होता है ताकि जो डिमांड फॉर कैश बाय अकाउंट होल्डर है ना उसको उसको मीट किया जा सके, उस रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। ओके, नंबर 2 था कि जैसे ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसमें करेक्ट क्या है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया था कि ये लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। सो इंक्रीज किया जाएगा तो ये होगा ना, ऑफकोर्स ये तो हो ही रहा था, इमीडिएट फॉर इंस्टीट्यूशन, इसका ऐसा कुछ नहीं था। रिडक्शन इन फिस्कल डिफिसिट ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो as we know, money multiplier is equal to 1 by CRR 100। These are the cash, ये the reserve ratio, यानी कि सपोज अगर ये रिजर्व रेशियो 20 है तो मनी मल्टीप्लाई वुड बी x। अगर यही 40 कर दिया जाए तो जो मनी सर्कुलेशन या मनी मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, यानी कि जो लोनेबल अमाउंट जो बैंक प्रोवाइड करते हैं उसको पीपल को, वो कम हो जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी कम है तो लोनेबल अमाउंट भी कम होगा। कैश रिजर्व रेशियो ये CRR। इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लो इन द इकोनॉमी, ऐसा कोई इससे डायरेक्ट लिंक नहीं है। रिडक्शन इन फिस्कल डिफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल डिफिसिट मतलब कि जितनी खर्चा कर रहे हैं या फिर जितना गेन कर रहे हैं उसमें जो गैप है कि ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो रिसिप्ट है वो क्या है, लेस है। तो ऐसी कोई डायरेक्ट बियरिंग नहीं है। जैसे इन्होंने भी बताया कि ये डिजायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन करने के लिए, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए CRR है। इसके अलावा एंड आल्सो लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, lower the CRR higher liquidity with the banks, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर CRR कम होगा तो which in turn goes into investment and lending,
जो फिर इन्वेस्टमेंट में जाएगा और लैंडिंग में जाएगा वाइस वर्सा। हायर सीआर होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड, इन टर्न स्लो कर देगा इन्वेस्टमेंट को भी, it thereby reduce the money supply in the economy. Consider the following regarding GDP deflator. हमने क्या कहा था इसमें कि ओनली टू, हाँ यही था हमारा मुश्किल, ये हमने नहीं किया था। स्टेटमेंट ओके, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, हमारा गलत हो गया। लुक दिस इज कहते हैं कि हमने आंसर तो यही किया था, पर जो हमारी गैसिंग थी वो उसके जो पैरामीटर थे वो डिफरेंट थे, लेकिन वैसे तो स्टेटमेंट ठीक होगी। दिस इज जो इस बार के सिनेरियो में हुआ था, मतलब जब जच्चों के साथ की, जिसकी जो गैसिंग किसी ने इन लोगों को मान के की, बट आंसर ये तो था, बट द एंड आंसर वाज राइट। जीडीपी डिफ्लेटर इज कॉल्ड implicit price deflator, is a measure of inflation in certain ways not क्या सिनेरियो क्यों। इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ, ये तो हमें भी आइडिया है कि जीडीपी डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन का पता चलता है, पर फिर भी एक बार जब इस तरह से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसको आंसर करना होता है और नाम होता है यूपीएससी, तो एक बार दिमाग में होता है कि क्या पता इससे ये उन्हें इसलिए लिखा हो कि हमें थोड़ा ट्रिक कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे फॉर्मूला रहता है माइनस दिस इनटू 100, ये जिसे हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं इस फॉर्मूले से, क्या पता सिर्फ वही हो। ये इस तरह से जैसे लगता है, इसे डिफरेंस इज बेसिकली अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। आई मीन एक सर्टेन वे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि क्या पता ना भी हो, वी जस्ट अज्यूमिंग इट। इसके अलावा ये मैं शायद उस पर आई वाज फॉरगेट एट द टाइम, बिकॉज इट कंजप्शन पे नहीं, ये मोर लाइक प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है बेसिकली। सीपीआई जैसे होता है उसमें कुछ बास्केट होती है, सीपीआई कंजप्शन पे बेस्ड होता है वो। इसके अलावा जैसे एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, वो भी इन्फ्लेशन का इंडेक्स है। डिफलेटर हो गया इन्फ्लेशन के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर मोर फोकस ऑन कंज्यूमर विद द डिफलेटर इज मोर फोकस ऑन प्रोडक्शन। देखो ये प्राइस डिफलेटर है, इसका मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर, देखिए जो नॉमिनल जीडीपी अगर हम बात करते थे, and the price prevailed during the base year, right? The ratio helps us show the extent to which the increase in GDP has happened on the account of higher price rather than increase in the output. Since the deflator covers the entire range of goods and services produced in an economy as against the limited commodity basket. देखो इसमें तो जैसे इंटायर आप जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली, इसके अलावा जो होलसेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस होते हैं उनमें बास्केट होती है कमोडिटी की, लिमिटेड बास्केट ऑफ कमोडिटी, तो इट इज द मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर देन ऑफ इन्फ्लेशन। सो जैसे कि अब हम देख रहे थे, सपोज करिए कि अगर चेंज इन कंजप्शन पैटर्न होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर automatically reflected in GDP deflator. This allows the GDP deflator to observe changes to an economy consumption or investment pattern. Often the trend of the GDP deflator will be similar to the consumer price index. हम अगली बार देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा जो स्लाइड्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जीडीपी डिफ्लेटर तो हमने वैसे भी देखा ही हुआ है। तो इसमें बेसिकली तो ये तो हमने देख लिया कि ये एक इन्फ्लेशन मेजर का ये एक तरीका है। जैसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो उनमें कमोडिटी की बास्केट हम लेते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में इस तरह से कमोडिटी की बास्केट नहीं ले जाते, और जो जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो सब इंक्लूड हो जाता है जीडीपी में। इसमें बेसिकली क्या देखता है, ये जो प्राइस पे जो मतलब ये जो चीज़ है कि भाई आउटपुट बढ़ी है नहीं बढ़ी है, या फिर सिर्फ जो ये जीडीपी इंक्रीज हुई सिर्फ प्राइस की वजह से हुई है, ये भी हमें किससे पता चल जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर से पता चल जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये अभी सारे ना इकोनॉमी के ही आ रहे हैं जो भी करंट वाले, और पिछली जैसे वैसे ही इतने लेट हो चुकी हैं वीडियो कि मैं जो जून वाले ये सेक्शन डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर जून वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे होते तो इकोनॉमी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते और साथ में उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते रहते। सो द क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब हम बात करें करेंसी, पहली बात डिपॉजिट एंड रेशियो। ओके, सीरिया इज कैलकुलेटेड ओनली विद रिस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट, it reflects people's preference for liquidity, it generally increase during the festive season। जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या वो फेस्टिव सीजन के ड्यूरिंग इंक्रीज करेगा, हमने इसको मना किया था। इसके अलावा ये हमने ठीक किया था। इसमें ये जो है ये इन्होंने इनकरेक्ट बताया, वैसे हमने शायद इसका वो नहीं किया था। वेट,
ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। वेट, ये मैंने गलत इसलिए कर दिया क्योंकि जो मैं एक लिटिल फॉर्मेशन बना रही थी वो मैं गलत बना रही थी अपने माइंड में। मेरा मानने का सिर्फ तो यही था कि भाई बेसिकली फेस्टिव सीजन में क्या होगा कि लोगों के पास मनी इंक्रीज करेगी, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से हमारा ये गलत हुआ। सीडीआर बेसिकली क्या होता है, करेंसी जो पब्लिक के पास है प्लस द डिमांड डिपॉजिट, इन्होंने लिखा भी हुआ है राइट। ये हो गया डिमांड डिपॉजिट। देखो, द करेंसी डिपॉजिट सीडीआर जो रेशियो है इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू द होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। तो सपोज करो ये इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसके अगर इसका इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तभी तो इंक्रीज कर रहा है ना ये। तो यानी कि जो पब्लिक के पास जो करेंसी है, ये जो ऊपर है सीयू, वो ज़्यादा हो और ये डिमांड जो डिपॉजिट है जो उनके बैंक में डिपॉजिट है वो कम हो, तो क्या होगा, सीडीआर इंक्रीज होगा। ये क्या होता है, फेस्टिव सीजन में होता है। ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन में लोग बैंक से ज़्यादा अपने हाथों में मनी पसंद करते हैं, बैंकों से निकलवा और लेते हैं उसको खर्च करने के लिए, मिठाइयों के लिए, कपड़ों के लिए और चीज़ों के लिए, होले पे कलर्स वगैरह के लिए, थिंग्स राइट। ओके, तो इफ पर्सन गेट रुपीज 1 शी विल पुट 1 + 1 + CDR, okay, 1 + 1 + CDR in her bank account and keeps rupees CDR 1 plus CDR in her cash. ओके, तो इट रिफ्लेक्ट पीपल प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। तो ये जो सीडीआर है वो क्या से क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लिक्विडिटी की जो प्रेफरेंस है वो भी रिप्रेजेंट करता है। सपोज 1 रुपया है तो लोग बैंक में कितना रुपया रखना पसंद करेंगे, 1 + 1 + CDR। एंड उसके पास करेंसी जैसे जो कैश में कितना रखना पसंद करेंगे, CDR 1 + CDR। सो इट प्योरली बिहेवियर पैटर्न है, डिपेंड सो मैं डिपेंड करता है फेस्टिव सीजन में क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है बेसिकली। क्यों हम बेवजह अपना टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, एक ही बात है ना, बदल जाएगी। कंसीडर स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट ओनली सेकंड स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है क्योंकि डेवलप नहीं है। चाइना की मैंने बताया था ना आपको, चाइना की कंट्री भी है, चाइना कोई डेवलप नेशन थोड़ी है। एसडीआर इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट created by FM to supplement its member countries' official reserve. Yeah, of course. देखो, SDR is an international reserve asset created by IMF in 1969 to supplement its member official reserve. The value of SDR is based on the basket of 5 countries: US dollar, euro, European Union का euro, Chinese renminbi, Japanese yen, British pound sterling. So ये तो हमने देख लिया था। हमने देख लिया कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट है आईएमएफ का, उसमें कौन सी करेंसी है, ब्रिटिश का जो पाउंड स्टर्लिंग है, जापानीज येन है, जापानीज का कोई, इसके अलावा यूएस का डॉलर है, यूरोपियन एजेंसी का यूरो है, एंड वन एंड द लास्ट चाइनीज का रेन मिनबी है। ओके, इसके अलावा हमने देखा रिजर्व मनी देखी थी ना। रिजर्व मनी बेसिकली क्या है, रिजर्व मनी में हम देखते थे, उसमें हमने डिस्कस क्या किया था रिजर्व मनी में। एक तो हमने बोला जैसे एक हाई, वो कौन सी होती है, हाई वैल्यू मनी, इसको जिसको हम बेस मनी भी बोलते हैं, जो मनी मल्टीप्लाई कितनी मल्टीप्लाई होगी। मनी मल्टीप्लायर बेसिकली क्या होता है, हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, जनरली मैं बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। और ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने हाफ वीडियो पहले रिकॉर्ड की हुई है, अब मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इसलिए एक्टिव रिकॉल ये है, असली एक्टिव रिकॉल। पिछले बार कोई एक्टिव रिकॉल अगर हम उसी वक्त करें और उसी वक्त रिकॉल करें तो वो फिर भी ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन अब जैसे मैं इसको काफ़ी देर बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये तो वेरी टफ एक्टिव रिकॉल है। बट इट increase your skill of the connections in your brain and also make the things permanent. So हमने रिजर्व मनी की बात कर रहे थे। एक तो हम देखो, जब एक आरबीआई मनी को इशू करता है तो देखो, एक जो कॉइन है या 1 रुपए के सिक्के हैं वो कौन इशू करता है, इशू तो आरबीआई करता है, पर वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे करता है। इसके अलावा जितनी भी मनी है उसको कौन इशू करता है, उस सारी मनी को आरबीआई इशू करता है। अब इस जो मनी को, जो ये इस मनी को क्या बोलेंगे हम, रिजर्व मनी बोलते हैं। अब ये जो मनी इशू की है उसको जो बैंकों के पास उसने वो ट्रांसफर की है, तो बैंक इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए इस मनी को बेस मनी और काफी सारे इसके हाई वैल्यू मनी बोलते हैं इसको। और जो मनी मल्टीप्लिकेशन वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, मनी मल्टीप्लिकेशन जनरली डिपेंड करेगा 1/कैश रिजर्व रेशियो। अगर ये कम होगा तो मनी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, उसी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लिकेशन कितनी मनी मल्टीप्लाई होगी। इसके अलावा जो रिजर्व मनी हम बात कर रहे थे उसमें जो
पीपल्स ने अपनी जो मनी रखी है उसके बारे में बात करते, लेकिन उसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उस रिजर्व मनी के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, वी विल डिस्कस इट लेटर। इसकी वजह से स्पेशल ड्राइंग राइट की हमने बात करी है। ऑफिशियल रिजर्व है उसको सप्लीमेंट करते हैं। 1969 में आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किया था 5 नेशंस की करेंसी होती है। इसके जस्ट बिफोर इट हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था ये जो डिफ्लेटर के बारे में, जितना भी जीडीपी का जो प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द कंजप्शन। इसके अलावा ये मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन है, वन ऑफ द मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन। एंड other than this what it's talk about, इसके अलावा ये क्या बताता है कि जीडीपी डिफ्लेट। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? इन्फ्लेशन के बारे में तो बता रहा था। और क्या चीज़ों के बारे में बता रहा था कि जो भी चेंज हुआ है कि आउटपुट जो जीडीपी में आउटपुट चेंज हुई है वो जनरली आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से हुई है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हुई है, ये भी जीडीपी से पता चलता है। रिजर्व मनी देख लिया, जैसे किसके अलावा M0 बोलते हैं उस वाली मनी को। इसके अलावा कई M1 M2 M3 सबसे ज़्यादा बात होती है M3 की, M4। इसके अलावा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ये नैरो मनी है, ये ब्रॉड मनी है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ये वाली मनी होती है, फिर ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। ये चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा 3 क्वेश्चन तो मुझे याद आ गए, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अदर देन 2 क्वेश्चन और कौन से थे इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे? आगे चलते अगली बार। ये तो फिल हो गया, नेक्स्ट पेज पे एक हमने देखा था करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या था? जो करेंसी इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, वेयर जो करेंसी है बैंक में, डिमांड डिपॉजिट जो है, ये हमने देखा था। फिर फेस्टिव सीजन में क्या कर जाएगी? इंक्रीज। फेस्टिव सीजन में क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएगा CDR, करेंसी इन द पब्लिक इंक्रीज, CDR वुड बी इंक्रीज इन द केस ऑफ फेस्टिव सीजन। बस ये हमें देखा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।